مکاشفہ کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 12 آیات سے لے کر ہم 17 آیات تک خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں یہ رقم ہے، اور جب اس نے چھٹی مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بونچال آیا اور سورج کمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا، اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں، اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا، اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زور آور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے، اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برا کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا، اب کون ٹھہر سکتا ہے؟ آمین۔ اس کے ساتھ دوسری تلاوت پھر سے کریں گے 7ویں باب کی پہلی 3 آیات کو خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب 7 باب پہلی 3 آیات۔ اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر 4 فرشتے کھڑے دیکھے، وہ زمین کی چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے۔ پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا۔ اس نے ان 4 فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو ضرر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا۔ آمین۔ آمین۔ خدا کے کلام کی پڑھے سنے جانے کے وسیلے خدا ہم سب کو برکت بخشے۔ آئیے سب کچھ سب بولیں گے ہاللیلویا۔ خدا ہم کے شکر گزار ہیں آج پھر سے اس خوبصورت وقت کے لیے جو خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ ہم اپنے خدا کے حضور آج پھر سے جمع ہو سکیں اور آ کر خدا کی پرستش کر سکے۔ اس بات کے لیے ہم اپنے خدا کے دل سے شکر گزار۔ آمین۔ خدا جو ہمیں بار بار موقع دیتے تاکہ ہم اس کی حضوری میں آئیں، بائبل کو سیکھیں، کلام کو سیکھیں، اس کی پرستش کریں، جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں اس زمین پر بھیجا ہے اس مقصد کو اپنی زندگیوں میں پورا کر سکے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خدا نے جو ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، سسٹم بنایا ہوا ہے، اس کو اس سسٹم میں ہمیں کہاں پر رکھا ہوا ہے ہم اپنے آپ کو دیکھ سکیں، یا پھر اگلے وقت میں آخری وقت میں وہ ہمیں کہاں پر رکھے گا اس وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ آمین۔ چھٹی مہر پر پیغامات کافی زیادہ ہو چکے ہیں جی، 7 پیغام، 6 پیغام ہم نے ڈائریکٹ چھٹی مہر پر دیے ہیں، 7واں پیغام چھٹی مہر کے ساتھ فکر مندی کے ساتھ دیا ہے کہ چھٹی مہر میں خدا کا غضب نازل ہونے والا ہے، خدا کے روز عظیم کا وقت آنے والا ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے ہماری فکر مندی کتنی ہے، ہم اس بات کے لیے کتنے فکر مند ہیں۔ پیغامات ہر روز آ رہے ہیں، پیغامات اچھے سے اچھے مل رہے ہیں۔ اپنی میراث کی حفاظت کریں، اس پر پیغام دیا گیا ہے۔ اولاد کے بارے میں ڈائریکٹ سکھایا گیا ہے، اپنے دوستوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، بیویوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ کون سا ایسا ٹاپک ہے جس پر ابھی تک نہیں بتایا گیا ہے جو خاص ہو؟ خاص ہے لیکن آپ کہیں جی ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ بڑی خاص بات تھی، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو سب کچھ بتانے کے بعد، سب کچھ سننے کے بعد ہماری آج کتنی فکر مندی ہے؟ آج جتنی ہم نے جوش و خروش کے ساتھ پرستش کی ہے، ہم جانتے ہیں ہم نے کتنا خدا کو خوش کیا اور خدا کی طرف سے کتنے اچھے تحفے ہمیں مل رہے تھے، وہ بھی ہم نے دیکھا۔ کتنا ہم خدا کو خوش کر رہے ہیں
पैगाम सुनने के बाद छठी मोहर में क्या होने वाला है उस पर हमारी फिक्रमंदी कितनी है। पूरा हफ्ता हमने कितना जोर लगाया खुदा के हुजूर आने के लिए। अगर कभी शाम को दिल करता भी है आने के लिए तो हम आते ही नहीं है। अगर दिल गलती से कर भी लेता है फिर भी उसे रोक लेते हैं, नहीं जाने। रात को भी मैंने ऐसा कहा है और इससे पहले भी कई पैगामात के अंदर कहा है, खुदा जब रद्द कर देता है तो उनकी जगह पर नए लोग ले आता है। खुदा जब रद्द कर देता है आपको समझ भी नहीं आएगी, आप यहां से तितर बितर हो जाएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगी। ऐसा खुदा टांटा खड़ा करेगा आपको हमें देखना भी नसीब नहीं होगा। दिलों के अंदर नफरत गुस्सा तो फिर के इतने भर जाएंगे आप यहां पर आएंगे नहीं और खुदा किसी दूसरे को यहां पर ले आएगा। उसके पीछे वजह क्योंकि खुदा रद्द कर देता है, खुदा खत्म कर देता है। बार बार भी तंबीह पाकर बार बार भी समझाने पर अगर नहीं सुधरते हैं खुदा खत्म कर देता है। ये वो चर्च नहीं है जो दुनियादारी के अंदर चर्च लगे हुए हैं तादाद बढ़ाने के लिए। यहां पर हमें तादाद की कतन जरूरत नहीं है। हमारे पास एक बंदा होगा, हम उस एक बंदे को घंटा कलाम सुनाएंगे क्योंकि हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। हमारे उस्ताद यीशु मसीह है और वो अमूस की राह पर 2 लोगों को भी कलाम सुनाते हैं और 7 मील तक उनके साथ बातें करते हैं। हमारा जो उस्ताद यीशु मसीह है वो एक सामरी औरत से अकेली से भी बात करता है तो हमें कोई एतराज नहीं है। ना हमें 5,000 चाहिए ना 10,000 चाहिए। एक ही बंदा हो जो एक बंदा कलाम सुनकर दुनिया में जाए और दुनिया को बदल के रख दे। हमें ऐसे एक बंदे की जरूरत है। अगर आप नहीं बदलेंगे खुदा आपको बदल देगा। यहां से मोहतात हो जाइए, एहतियात बरतिए, मोहतात हो जाइए, एहतियात बरतिए, फिक्र करें इन बातों की। ये बातें हवा में तीर नहीं है। मैं आपको सच कह रहा हूं, खुदा ने हमेशा खुदा ने ऐसे लोगों को रद्द कर दिया जो कलाम को रद्द करते हैं। क्योंकि खुदा किसी की तरफदारी, खुदा किसी का तरफदार नहीं। खुदा उसका तरफदार है जो कलाम का तरफदार है, जो कलाम से मोहब्बत करता है और जो उसके कलाम से डर जाता है। खुदा ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है या ऐसे लोगों से प्यार करता है। या बाप भी ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है जो उसकी बात मानते हैं। अगर बाप की बात नहीं मानी जाती है तो बाप अगर कोई चीज देता है तो वो सिर्फ इस वजह से देता है कि ये मेरा बच्चा है, वरना उसके बाप के दिल में कोई मोहब्बत नहीं होती है। क्योंकि आप उसके ताबे फरमान नहीं है, आप उसके फरमान को मानते नहीं है। आपको मांगने पर भी अगर नहीं मिलता है या बाप दे देता है तो सिर्फ वो बाप होने की वजह से देता है, आपकी मोहब्बत से नहीं देता है। अगर आप यहां पर अभी तक आ रहे हैं तो आप उस बात को समझिए जो नोहा की किताब में यिर्मयाह ने लिखी है कि यह खुदावंद की शफकत है कि हम अब तक फना नहीं हुए। यह खुदा की शफकत की बदौलत है, वरना पिछले साल 1.5 साल से आपने जितना कलाम सुन लिया, हमारी जो एक दफा बात ना मानी जाए हम रद्द कर देते हैं। मेरी बात नहीं सुनी गई है, मेरी बात कोई मानता नहीं है, मेरी बात रद्द कर देता है, घर आना ही छोड़ देते हैं, मेरी वैल्यू नहीं है। तो यहां पर हमारा ये अलमिया है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी एक दफा बात ना मानने पर हम घर को छोड़ देते हैं। खुदा की कितनी रद्द करते हैं, खुदा फिर भी हम पर रहम करता है। क्या ख्याल है आपका? कितनी बातें रद्द करते हैं फिर भी खुदा ले आता है, रहम कर देता है, तरस खा लेता है। जैसे बाप तरस खाता है, खुदा फिर से तरस खा लेता है, क्योंकि वो हमारी हलाकत नहीं चाहता। वरना सरकशी पर पैगाम कितने अभी तक हो चुके हैं? 14 पैगाम अमाल की किताब से हो चुके हैं। सरकशी पर बार बार सुनाया जा रहा है, गर्दन कशी, सरकशी। और मैंने मिसाल दी थी
कॉल कॉन्फ्रेंस की। कॉल कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने 10 पैगाम दिए, इबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो फाइनली क्या हुआ? कॉल कॉन्फ्रेंस वाले सारे साबित क्या हुआ? सब वही है। तो जिस दिन गर्दन कशी का पैगाम हुआ था, मैंने कहा था मैं 1 साल कलाम सुना सकता हूं गर्दन कशी का, 1 साल, क्योंकि जब से मैंने शुरू किया गर्दन कशी पहले से बढ़ गई है। जब से इसको शुरू किया गर्दन कशी, और लोग भी भाग गए, आना ही यहां से छोड़ दिए। क्यों? ये दिखाने के लिए भाई हम वो लोग हम ही हैं। वरना ऐसा कौन सा जरूरी काम है कि जो खुदा से बढ़कर है? सारा दिन काम करने के लिए थोड़ा है, हाँ? कितना काम करोगे? और काम कर करके करोगे क्या? बनाओगे क्या इकट्ठा करोगे? हाँ? जितना ज्यादा पैसा होगा अपने बच्चों के लिए आप उतनी ज्यादा नफरत फैलाओगे। ये खुलकर बात कर रहा हूं। आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा आपके बच्चे उतनी ही ज्यादा आपसे नफरत करेंगे। कैसे? उसको पूछता है, मुझे पूछता नहीं। एक को दे दिया और दूसरे को दिया ही नहीं, तो दूसरा आपसे क्या करेगा? तो जितना ज्यादा आपके पास पैसा आप उतनी बच्चों को अपने खिलाफ कर रहे हैं। एक को ज्यादा दे दिया, एक को कम दे दिया, उसकी बात मानी, मेरी बात मानी नहीं है, उसको ये दिया, उसको वो दिया, और फाइनली क्या करेंगे? एंड पे जाएंगे, दौलत सारी यहां पर छोड़ेंगे और आप खुद निकल जाएंगे, और पीछे बच्चे लड़ मरेंगे। ये घर मेरा है, ये पैसा मेरा है, ये बैंक बैलेंस मेरा है। कोई बाप की जूती खींचेगा, कोई बाप के कपड़े खींचेगा। यही होगा, फाइनली यही है। सारी जिंदगी आपने जिस पर गुजार दिया, कलाम को रद्द कर दिया, एक दिन यही कलाम फिर एंड पे आपको रद्द कर दे। ले आओ अपना पैसा, जाके वापस जाओ। अमीर शख्स की बात आपके सामने, मेरे बाप के घर में भेज, मेरे भाइयों के पास भेज। मेरे 5 भाई और हैं, उनका जाकर बताओ मैं किस हाल में हूं यहां पर। और लाजर जिसके पास कुछ भी नहीं था, लाजर तो उसको क्या मिला? लाजर को क्या मिला? बाप अब्राहम की गोद। तो जिसके पास बहुत कुछ था उसको क्या मिला? हाँ, पानी की एक बूंद को तरस रहा है। हमें पता सारा ही है, फिर भी हम अमीर शख्स बनना चाहते हैं, ताकि अगले वक्त में जाकर पानी की एक बूंद को भी तरसे। ऐसे ही है, ये बाइबल की बात है। तो जो बाइबल में लिखा है वो हमारे लिए लिखा है। तो खुदा का गजब जो आने वाला है उसमें एक पानी कतरा बूंद भी जो है वो मिलने वाला नहीं है। काम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप 22 घंटे काम कर सकते तो 2 घंटे खुदा को भी दे सकते हैं, 2 घंटे 24 मिनट खुदा को भी दे सकते हैं। आपका बैलेंस बराबर हो सकता है। अभी बहन दुआ कर रही थी, जब हम तेरी हजूरी में तराजू में तोले जाए तो हम कम ना निकले। बहन मेरी, हम हर वक्त ही कम निकलते हैं, और तब भी हम कम ही निकलेंगे, ये फाइनल है। अगर तराजू बराबर रखना है तो फिर 22 घंटे काम करें और 2 घंटे 24 मिनट खुदा को दे, ताकि पलड़ा बराबर रह सके। वक्त की दायकी आप निकाल कर खुदा के सामने पेश कर सके, फिर शायद हम पलड़े को बराबर कर सके। लेकिन खुदा के लिए तो दिन में 1 मिनट भी हमारे पास नहीं। रात को देर में सोना और सुबह सवेरे जागना तेरा अब से बेकार है, ऐसा बाइबल में ज़बूर की किताब में लिखा हुआ है। रात को देर से सोना ज़बूर 127 में लिखा हुआ है। निकालिए इस आयत को, पढ़िए जरा, ज़बूर 127 की पहली आयत। अगर खुदावंद ही घर न बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अब से है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत
نہ کرے तो निगहबान का जागना निगहबान का जागना अब्स है, तुम्हारे लिए सवेरे उठना तुम्हारे लिए सुबह सवेरे उठ जाना और देर में आराम और करना, देर में आराम करना और मुशक्कत की और मुशक्कत की खाना अब्स है। मुशक्कत की रोटी खाना मुशक्कत के साथ मतलब काम काज करके इकट्ठा करके रोटी खाना बेकार है। सुबह जल्दी उठ जाना, रात को देर से सोना, मुशक्कत करके रोटी खाना, ये बाइबल कह रही है बेकार है। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि आगे क्या लिखे? क्योंकि वो अपने महबूब को अपने महबूब को तो वो नींद में दे देता है। ना उसे सवेरे जल्दी उठने की जरूरत है, ना रात को देर तक काम करने की जरूरत है, ना उसे मुशक्कत करके रोटी खाने की जरूरत है। खुदा नींद में ही सब कुछ दे देता है। कहां पर आप है और कहां पर खुदा का कलाम है? मुआजना करके देखें। मैंने कहा हमारी कितनी फिक्रमंदी है, हम कितने फिक्रमंद हैं उस खुदा के गजब के दिन को उसको फेस करने के लिए। खुदा के गजब का रोज़े अजीम आ रहा है, तब जब लोग बड़े बड़े आला कदर लोग, 15वीं आयत 6 बाब की मुकाशवा की किताब, बड़े बड़े लोग, अमीर लोग जो रईस लोग हैं दुनिया के, आज जिनको अपनी दौलत जो है वो हिसाब से बाहर है। हमारे पास कितनी दौलत जी? नंबर 1 पर कौन है? जमीन के बादशाह और अमीर जो दुनिया पर हुकूमत करते हैं। नंबर 2 पर अमीर लोग और फौजी सरदार। नंबर 3 पर फौजी सरदार, फौजी जर्नैल। सरदार वही है जो जर्नैल है, चीफ है। ऐसे लोगों के पास दौलत है। ऐसे लोग पूरी दुनिया को हुकूमत में लेके आते हैं या पूरी दुनिया पर हुकूमत करते हैं, या फिर फौजी सरदार अपने अपने मुल्कों पर हुकूमत करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बाकी जर्नैल, ये यहां पर ये सारे हैं। अमीर, फौजी सरदार और मालदार और जोरावर और तमाम गुलाम और आजाद पहाड़ों के गारों और चट्टानों में क्योंकि ये अमीर थे। ये हमारे पास तो इस जगह पर जमीन लेने के लिए जगह नहीं है, लेकिन ये क्या करेंगे? ये पहाड़ों के अंदर सुरंगें बनाएंगे, पहाड़ों के अंदर चले जाएंगे। और ऐसा आज के जमाने में जिसमें हम रह रहे हैं, ऐसा हो चुका है। बड़े बड़े मुल्क हैं जो आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, जमीन दो जितनी आबादी उनके ऊपर है उससे ज्यादा आबादी उनकी जमीन के नीचे है। बड़े बड़े अदारे, बड़े बड़े मुल्क, उन्होंने अपने डिफेंस के लिए आबादी ऊपर सिर्फ नाम की छोड़ी हुई है, जमीन के नीचे वो सुरंगों के अंदर अब बड़े बड़े इमारतें, बड़े बड़े शहर उन्होंने बनाए हुए हैं। जमीन के नीचे वो काश्तकारी कर रहे हैं। ऊपर से हमला करेंगे, ऊपर से तबाही फैलाएंगे और भागकर जमीन के नीचे चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर जगह ठंडी, उनको सब कुछ मिलेगा। ऐसा आज हो चुका है। बड़े बड़े अमीर लोग आपको जमीन के ऊपर कम नजर आते हैं। कहां पर गए हुए? दौरे पर गए हुए, लेकिन दौरे पर भी वो नजर नहीं आते। कहां पर है? वो जमीन के नीचे किसी जगह पर जाकर बैठे हुए। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, अभी शुरुआत है। शायद वो अपने लिए जमीन को ऊपर से सेफ नहीं समझते हैं, जमीन के नीचे जाना सेफ समझते हैं। लेकिन एक दिन आने वाला है जिसमें ये सब कुछ होने वाला है। 16वीं आयत में, 16वीं आयत में क्या लिखे? और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो। अब वो जब नीचे चले जाएंगे तो नीचे भी उनको सुकून मिलने वाला नहीं। ऊपर तो ये मसाइल छोड़कर चले जाएंगे, ऊपर तो ये मार कर चले जाएंगे और समझेंगे कि हम नीचे सेट है। लेकिन इस तरह का माहौल खुदा बनाएगा जैसे नूह के दौर में हुआ। ना जमीन के नीचे वाले, ना समंदर की मखलूकात, ना पहाड़ों पर बसने वाले। पहाड़ों से भी पानी तकरीबन 15 हाथ ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि खुदा का गजब का दिन आया है, रोजे अजीम आया है। उसमें कोई शख्स बच नहीं सकता है। उस दिन में कोई भी शख्स बच नहीं सकता है।
लेकिन याद रखिए, जैसे ही छठा बाब शुरू होता है, खत्म होता है, छठी मोहर खुलती है, तो सातवां बाब बिल्कुल एक अलग पेज दिखाता है। छठी मोहर खुली और छठी मोहर खुलते ही जहां पर एंड हुआ वहां पर प्रोग्राम बिल्कुल साफ हो जाता है। आगे सातवीं मोहर नहीं है। आगे क्या हुआ है? आगे कुछ फर्क चीज आई है। इस बात को समझने, इसकी तस्वीर यीशु मसीह ने दिखाई है। आइए मेरे साथ देखिए, मत्ती की इंजील में 24वें बाब में जाएंगे। यहां पर भी आपको समझ में आएगा कि खुदावंद यीशु मसीह जब छठी मोहर के बारे में अपने शागिर्दों को बता रहे थे, तो बात करते करते बिल्कुल प्लान चेंज हो गया। पढ़िए इसकी 29 आयत से। और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कूबतें हिलाई जाएंगी। और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आता देखेंगी और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगजीदों की चारों तरफ और उसके बरगजीदों को जमीन के चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक क्या करेंगे? ये काम बाकी होने वाला है। इस छठी मोहर में, जिसको हमने फिक्रमंदी का नाम दिया है, इसमें जो फिक्र करेगा महफूज हो जाएगा। आज के टाइम में जिसे पता चल गया कि ये काम होने वाला है और अपने आप को महफूज कर रहा है, सेव कर रहा है, उनको फरिश्ते आकर इकट्ठा करेंगे। इस जमीन पर से इकट्ठा कर लेंगे ताकि उन पर खुदा का गजब ना आए। आमीन। इसके लिए जो बड़ा खास रेफरेंस खुदा ने मुझे दिया है, कल भी हमने इसको पढ़ा था, कल के पैगाम में भी एक बार फिर से पढ़ेंगे। गिनती की किताब 35वां बाब और 6 आयत। और लावियों के उन शहरों में से जो तुम उनको दो छह पनाह के शहर ठहरा देना, जिनमें खूनी बाग जाएं। इन शहरों के अलावा 42 शहर और उनको देना। आमीन। यहाँ पर एक मतलब शहर का जिक्र है जिसको शहर पनाह कहा जाता है, कि जब किसी खूनी पर मुकदमा दायर हो या समझ में आए कि इसने खून किया, इल्जाम लग जाए, लोग इल्जाम लगा दे जी इसने खून किया, तो वो शख्स वहां से भागे और दौड़कर उस शहर पनाह में चला जाए और वहां पर जाकर वो महफूज हो जाएगा। अगर वो शहर में दाखिल हो गया तो उस पर गजब आने वाला, वो मौत से बच सकता है तब तक जब तक उसका केस लड़ा नहीं जाएगा, और वो अगर उसने गुनाह किया तो फिर उसको सजा मिलेगी, अगर उसने गुनाह नहीं किया है तो वो बरी हो जाएगा। इस काम के लिए खुदा ने कौम बनी इसराइल के दरमियान में शहर मुकर्रर किए, और ये सिर्फ शहर उस जगह तक नहीं है, ये आज हमारे दरमियान में भी है। अगर हम पर कोई इल्जाम लगाते, हम पर कोई ऐसा बेजा इल्जाम लगा देता, नाहक बात हमारे ऊपर थोप देता है, तो हमारे पास भी एक ऐसा शहर, एक ऐसी जगह है जिसमें हम जाकर छुप सकते हैं, जिसमें हम जाकर पनाह ले सकते हैं। और वो शहर, वो जगह, वो महकम किला, हमारे छुपने की जगह एक ही है, और वो खुदावंद यीशु मसीह। अगर कोई आज उसमें जाकर छुप जाएगा
उसमें जाकर महफूज हो जाएगा, वो बच जाएगा। एक और रेफरेंस, मत्ती की इंजील 23वां बाब, उसकी 37 नंबर आयत को देखिए। ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, ए यरूशलेम, ये जो नबियों को कत्ल तू जो नबियों को कत्ल करती है, करता और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है। कितनी बार मैंने चाहा, कितनी बार मैंने चाहा, जिस तरह मुर्गी अपने जिस बच्चों तरह को मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे जमा कर लेती है, जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर। कितनी बार मैसेज दिया है, हर रोज मैसेज दिया है, सेमिनार में मैसेज दिया है, हर रोज हर रोज हर रोज आपको पैगाम दिया है, मेरे पास आ जाओ। हर रोज पैगाम दिया है, इस शहरे पनाह में आ जाओ, इस कलाम के अंदर आ जाओ, क्योंकि कलाम में जिंदगी है, कलाम ही छुपने की जगह है, कलाम ही एक महफूज मकाम है। अगर कोई इस कलाम में आ जाता है वो महफूज हो सकता है, वो महफूज हो जाता है, वरना वो वाकया जो हमने पढ़ा है, खुदा के गजब का रोज़े अजीम आने वाला है, उसमें कोई शख्स बचने वाला सिवाय उसके जो मसीह में आ चुका है, सिवाय उसके जो कलाम में आ चुका है। और जो तीसरी आयत हमने पढ़ी, मुकाशवा की किताब 7वें बाब की तीसरी आयत, जिन पर खुदा की मोहर की गई है, जिन पर खुदा की वो बच जाएंगे, और जिन पर खुदा की मोहर नहीं की गई है वो मारे जाएंगे। जिन पर मोहर लगी है वो बच जाएंगे, और जिन पर मोहर नहीं है वो मार दिए जाएंगे। और यही कुछ यीशु मसीह ने यहां पर कहा कि वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा, और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक कौन जमा होंगे? वही लोग जिन्होंने शहरे पनाह में पनाह ले रखी है। उन पर जो मुकदमा होना था वो चल चुका, ये बेगुनाह साबित हो चुके हैं। इनको यहां से उठाओ और उस जगह पर ले जाओ जहां पर हमेशा की जिंदगी पाई जाती है। आमीन। लेकिन जो कोई वहां पर नहीं जाएगा, वहां पर शहरे पनाह में आज नहीं जाने वाला, वो खुदा की हजूरी में भी जाने वाला नहीं है। उस पर खुदा का गजब नाज़िल होगा, उस पर खुदा का कहर नाज़िल होगा, और कोई भी शख्स खुदा के कहर के सामने टिक नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। सदूम और उमरा को उठाइए, कोई शख्स खुदा के सामने खड़ा, पहले लूत और उसकी बीवी को और उसके बच्चों को वहां से निकाला गया, पहले नूह को उसके बच्चों को कश्ती में बिठाया गया। तो यहां पर भी यही कुछ है, पहले उनको निकाला जाएगा जो आज खुदा से डरते हैं, जो आज खुदा की पनाह में आते हैं, जो आज मुर्गी जैसे बच्चों को परों के नीचे रखती है उसके परों में आ जाते हैं, वो बच जाएंगे। और जो आज नहीं आ रहा वो महफूज भी नहीं होने वाला। आज जो नहीं आ रहा वो महफूज होने वाला भी, तो जो महफूज नहीं होगा उस पर खुदा का कहर आएगा ही आएगा, वो बचने वाला नहीं। सो फिक्रमंदी बहुत जरूरी है। अपने बारे में फिक्र करें, अपने बच्चों के बारे में फिक्र करें, अपने खानदान के बारे में फिक्र करें। पिछली दफा भी यही पैगाम था, लफ्ज ये ऐसे ही थे, चंद बातें कोई फर्क आएंगी, बाकी उसी मैसेज को फिर से दोहराया जा रहा है ताकि हमारा माइंड सेट हो, हम महफूज हो सके, हम बच सके, क्योंकि खुदा हमारी हलाकत नहीं चाहता। लेकिन हमने कई दफा सीखा है कि जहां पर खुदा कलाम करता है, नबियों को भेजता है, बर वक्त भेजता है, अगर वो कलाम को रद्द कर देते हैं, एंड पे जाके खुदा उनको रद्द कर देता है। तो आप अपने आप को यूं समझे आप आखिरी स्टेज पर आ चुके हैं। आप आखिरी स्टेज पर, आपने बहुत कलाम सुन लिया। वक्त के लिहाज से आपको उस्ताद होना चाहिए। जितना आपने कलाम सुना है
वक्त के लिहाज से आपको उस्ताद होना चाहिए था, लेकिन अभी भी आप चाहते हैं कि आपको फीडर पिलाया जाए, आपको दूध पिलाया जाए। आप दूध पीने के मुश्ताक रहते हैं। यह वक्त दूध पीने का नहीं है, यह वक्त ठोस मांस खाने का है, यह वक्त ठोस गज़ा खाने का है। और ये वो वक्त है जिसमें हमें रात दिन जाग जाग कर दुआएं करने की जरूरत है। ये वो वक्त है जिसमें हमें दूसरों की फिक्र करने की जरूरत है। ये वो वक्त है जिसमें अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, अजीजों के लिए जागने की जरूरत है। लेकिन अगर हम खुद ही जाग नहीं पा रहे, हम किसी को क्या बचाएंगे? अंधा अंधे को क्या राह दिखाएगा? गड्ढे में गिरा हुआ शख्स किसी को बाहर क्या निकालेगा? जो खुद गड्ढे में गिरा हुआ है वो किसी दूसरे को नहीं निकाल सकता है, और जो खुद अंधा है वो किसी अंधे को राह दिखा नहीं सकता। अगर अंधा अंधे को राह दिखाएगा, दोनों गड्ढे में जाएंगे। तो अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करें, फिक्रमंदी करें। आइए दूसरा पैगाम फिक्रमंदी पर है। फिक्रमंदी करें, अपने आप को दुरुस्त करें, और फिर अपने आप को दुरुस्त करके अपने कबीले के बारे में, अपने खानदान के बारे में सोचें। आमीन। आइए चंद एक बातें और करेंगे, और ये बातें मुकाशवा की किताब के 7वें बाब की 30वीं आयत से उसको पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथे पर मोहर ना कर खुदा के बंदों के माथे पर मोहर ना कर दे, जमीन और समंदर और दरख्तों को जरर ना पहुंचाना, जमीन और समंदर और दरख्तों को जरर, जब तक हम मोहर ना कर दे तब तक आपने ये काम नहीं करना। 6 बाब की 6 आयत को देखिए, मुकाशवा की किताब। यहाँ पर तीसरी मोहर आपको खुली हुई नजर आएगी। और मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज आती सुनी, चारों जानदारों के बीच में ये आवाज आती सुनी कि गेहूं दिनार के शेर पर, और जो दिनार के 3 शेर, और तेल और मैं का नुकसान। वहां पर भी बताया गया कि कुछ ऐसे हैं जिनको महफूज रखा जाएगा, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको महफूज रखना है। यहाँ पर भी, और फिर जो यहाँ पर हमने पढ़ा है इस हवाले के अंदर भी, कुछ है जिनको महफूज रखना है, कुछ चीजें हैं जिनको बचा के रखना है, क्योंकि खुदा हर दौर में अपने लिए कुछ ना कुछ बचा के रखता है। जब एलिया ये कहता है कि मैं अकेला रह गया हूं, खुदा उनके लिए 7000 और बचा के रखता है। जब खुदा एलिया अकेला रह गया तो खुदा अपने लिए 7000, खुदा अपना हिस्सा बचा के रखता है। खुदा अपने लिए हर दौर में बचा के रखता है। आमीन। एक और हवाला पढ़े, 9वें बाब की 4थी आयत को निकालिए, मुकाशवा 9 की 4। यहां पर भी आपको समझ में आएगा। और उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर, उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, जमीन की घास या किसी हरियावल किसी दरख्त, हरियावल या दरख्त को जरर ना पहुंचाना, और उन्हें जान से मारने का नहीं। यहाँ पर भी आपने देखे कुछ ऐसे हैं जिन पर अजियत जिनको नहीं मिलेगी, और वो कौन है? जिन पर मोहर की गई है, जिनको अलग कर लिया गया है, जिनको खित्ते में जमा कर लिया गया है, जो शहरे पनाह में आ चुके हैं, जो परों के नीचे आ चुके हैं, जो कश्ती के अंदर आ चुके हैं, या फिर जो सदूम और अमूरा से बाहर निकल चुके हैं। कितनी मिसालें आपको चाहिए? हर मिसाल के एंड पे आपको यही मिलेगा, खुदा कुछ ना कुछ बचा लेता है, और बचाता उनको है जो खुदा की पनाह में आते हैं। वरना बदकार हर दौर में मारे जाते हैं, बदकार हर दौर में मारे गए। अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको खुदा के हजूर आना ही पड़ेगा, आपको खुदा की हजूरी में आना ही पड़ेगा, वरना खुदा के गजब का रोजे अजीम नजदीक आ चुका है, खुदा के गजब का दिन नजदीक आ चुका है। अब कौन बच सकता है? अब कौन ठहर सकता है? वही जो खुदा के परों के नीचे है। यशायाह की किताब से हवाला निकालेंगे, छठे बाब की 13वीं आयत को निकालिए। यशायाह
6 बाब 13 आयत। ईसाया 6 बाब की 13 आयत। और अगर उसमें 10वां हिस्सा बाकी भी बच और अगर उसमें 10वां हिस्सा बाकी भी बच जाए तो वो फिर बसम तो वो फिर बसम किया जाएगा, लेकिन वो बतम और और बलूद की मानिंद होगा। के बावजूद ये कि वो बावजूद वो काटे जाए तो भी उनका टुंड बच रहा तो भी उनका टुंड बच रहा है। खुदा एक टुंड बाकी बचा के रखता है। खुदा एक टुंड पीछे बचा के रखता है, जहां से वो फिर से नया काम करे। नूह के दौर में सारी दुनिया जब मर गई है तो नूह एक टुंड की तरह ही बाकी बचा है। पीछे एक छोटा सा दरख्त ही, उसका निचला हिस्सा ही बचा है, और वहां से खुदा ने दुनिया को फिर से स्टार्ट लिया। तो जो अभी 7वां बाब जिसको हम शुरू करने वाले हैं, इसमें 1,44,000 पर मोहर की जाने वाली है, जहां पर खुदा गजब लाने वाला है, जहां पर सारी दुनिया पर गजब आने वाला है। उसके साथ साथ खुदा कौम बनी इसराइल में से 1,44,000 को एक टुंड के तौर पर बचाने वाला है। इससे पहले के 7वीं मोहर खोली जाए, जमीन पर खुदा कुछ और करने वाला है, और वो ये है कि खुदा कौम बनी इसराइल में से 1,44,000 को महफूज करेगा। क्यों? ऐसा क्यों है? आपको पिछली मोहरों को साथ मिलाकर ही पढ़ना पड़ेगा। मुखालिफ मसीह आया, 7 साल का अहद बांधा, 3.5 साल में अहद को तोड़ दिया। अब 3.5 साल तकलीफ के हैं, 3.5 साल मुसीबत के हैं। नीचे मुखालिफ मसीह काम कर रहे हैं, ऊपर से खुदावंद यीशु मसीह छठी मोहर खोल रहे हैं, क्योंकि नीचे मुकद्दसों को तकलीफ दी जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये याद रखना है कि जो कलीसिया थी वो इस 7 साल के अहद से पहले आसमान पर उठाई जा चुकी है। हम इस जमीन पर नहीं है। ये बातें हमारे लिए नहीं है, ये बातें उनके लिए हैं जो जमीन पर रह जाएंगे। ये बातें उनके लिए जिन्होंने आज शहर पनाह के अंदर पनाह नहीं ली है। ये उनके लिए जो मुहकम किले के अंदर छुपे नहीं है, जो पीछे रह जाने वाले हैं। उनके लिए ये मैसेज है कि वो जब पीछे रह जाएंगे, कलीसिया आसमान पर, नीचे 7 साल का अहद, 3.5 साल में हाथ टूटेगा। 3.5 साल के अंदर इतनी बड़ी मुसीबत आएगी, तकलीफ आएगी कि जब से दुनिया बनी है तब से उस वक्त तक ऐसी तकलीफ का वक्त पहले नहीं आया है। तो अगर हम ये कहें कि पहले नहीं आया है, तो जो नूह के दौर में हुआ वो क्या था? जो नूह के दौर में हुआ वो क्या था? दुनिया तो तब भी मार दी गई थी, लेकिन शायद वो फर्क तरीके से मारे गए थे। अब की बार ये मरने वाले भी नहीं हैं और ये जीने वाले भी नहीं। ये मरने वाले भी नहीं हैं और ये जीने वाले भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मुकाशवा की किताब में हमने 16वें बाब में इसको पढ़ा हुआ है, कई दफा पढ़ाया गया। आज वक्त नहीं है कि उसको हम स्टार्ट करें। इंसानों के बदनों पर नासूर निकलेंगे, इंसानों के बदनों पर, हर एक नाफरमान पर जो जमीन पर रह जाएगा, हर बंदे को कैंसर होगा। जितने जमीन पर रहेंगे, एक भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको कैंसर नहीं होगा। यह पहली खुशखबरी ऐसे बदकारों के लिए जो आज कलाम को रद्द करते हैं। उनको पहला गिफ्ट खुदा की तरफ से कैंसर मिलने वाला है। कैंसर का फोड़ा हर डॉक्टर को, हर आम बंदे को, हर बच्चे को, मर्द को, औरत को, सबको यह गिफ्ट मिलने वाला है। आज तो खुदा गिफ्ट रूह के दे रहा है, आज तो फल मोहब्बत का दे रहा है, इत्मीनान का, खुशी का दे रहा है। आज तो हर चीज दे रहा है वाफर मिकदार के अंदर। आज तो हम उस दौर में हैं जिसमें बाग़ अदन में आदम को रखा हुआ था। बाग़ अदन में हर चीज वाफर मिकदार के अंदर है, लेकिन बाग से बाहर निकलने के बाद सिर्फ मायूसी है, उदासी है, खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, दुखों के अंदर, मातम के अंदर, फिक्रों के अंदर डूबा हुआ इंसान है। लेकिन अदन के अंदर सब कुछ फ्री था, फ्री ऑफ कास्ट, हर चीज जिसका दिल करता था वो मिलती थी। तो आज रूहानी तौर पर हमें सब कुछ दस्तयाब है, लेकिन जब ये वक्त निकल जाएगा, इसके बाहर क्या है? दुख, मुसीबत, बाकी दीगर सारी बातें आप सब जानते हैं। तो खुदा क्या करने वाला है?
خدا اگلے وقت میں کیا کرنے والا ہے, کیا ہونے والا ہے, جی کیا ہونے والا ہے. مصیبت آنے والی ہے, قہر کے پیالے ٹوٹنے والے ہیں, ہر بندے پر کینسر آنے والا ہے, ہر بندے پر پانی خون بننے والا ہے, سمندر کا پانی خون بنے گا اور بدبو پوری دنیا کے اوپر پھیل جائے گی. سورج کی گرمی سے انسان جلیں گے, اپنی زبانیں کاٹیں گے, لیکن توبہ, پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہوگا, پینے کے لیے بھی خون ملے گا. من من کے اولے آسمان سے گریں گے. یہ سب کچھ زمین پر ان بدکاروں پر آنے والا ہے جو آج کلام سے باہر ہے, جو آج شہر پناہ سے باہر ہے. ان سب پر یہ ہونے والا ہے. لیکن اس سے پہلے خدا اپنے لوگوں پر مہر کرنے جا رہا ہے. اس سے پہلے کہ چھٹی مہر کا اینڈ ہو, اختتام ہو اور 7ویں مہر کی خاموشی آئے, خدا اس سارے درمیان کے حصے میں اپنے لوگوں پر مہر کر رہا ہے. تو مہر کرنے والے کون؟ فرشتے. کیا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آج فرشتے زمین پر اترے ہوئے ہیں مہریں لگانے کے لیے؟ کیا آپ پر مہر لگ چکی ہے؟ کیا آپ نے روح القدس پا لیا؟ آپ روح القدس یافتہ ہیں, آپ مہر بند ہیں, آپ محفوظ ہیں, آپ پر یہ آفتیں آنے والی. لیکن اگر آپ روح القدس یافتہ نہیں ہیں, آپ پر یہ سب کچھ آنے والا ہے. چیک کریں اپنے باپ کو, اپنی ماں کو, اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو, اپنے شوہر کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے چاچی مامے پھوپھی پھوپھے کو, ماسی کو دیکھیں, چیک کریں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جو روح القدس یافتہ ہے وہ تو محفوظ ہو چکا, وہ تو بچ چکا ہے, لیکن باقی جو ہے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, ان کے لیے کتنی فکر مندی ہے, ان کے لیے ہم کتنے پریشان, کتنا فکر کرتے ہیں کہ ہمارے وسیلہ سے وہ بچ جائے, ہمارے وسیلہ سے وہ محفوظ ہے. ایوب کی کتاب 22 باب کی 23 آیت کو پڑھیے ذرا. اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے, اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا. اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو کب؟ ابھی لکھا ہے رستے میں جاتے جاتے مدعی سے صلح کر لے. رستے میں جاتے ہوئے مدعی سے صلح کر لے. ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے عدالت میں لے جائے اور عدالت میں جا کر جج کے سامنے کیس پیش ہو جائے اور تو گنہگار ثابت ہو اور تجھے سزا مل جائے. رستے میں جاتے جاتے یعنی کہ ابھی ہمارے پاس موقع ہے. آج جس زندگی میں ہم رہ رہے ہیں اس میں چانس ہے. جب تک ہماری زندگی میں سانس باقی ہے ہم مدعی کے ساتھ صلح کر سکتے ہیں. اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا. پھر آگے کیا لکھا ہے؟ شرط کہ تو ناراستی کو, لیکن شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ ناراستی کو اپنے خیمے سے, اپنے خیموں سے دور کر دے. اگر ہم محفوظ ہونا چاہتے ہیں تو ناراستی کو اپنے خیمے سے دور کرنا پڑے گا, اپنے بدن سے نکالنا پڑے گا. ناراستی کو, نافرمانی کو, سرکشی کو, گردن کشی کو اپنی زندگی سے نکالنا پڑے گا. تو اگر نہیں نکالیں گے مار دیے جائیں گے. خدا کا غضب ہم پر آئے گا, کیونکہ خدا کسی کا طرفدار نہیں, خدا کسی کا طرفدار نہیں, خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. جو اس کی مانتا ہے, کیونکہ لکھا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں ان پر مہربان ہے اور کجرو کے ساتھ وہ ٹیڑھا ہے. جو ٹیڑھا بندہ ہے خدا اس کے ساتھ ٹیڑھا چلتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا کسی سے ڈرتا ہے. یہ تو خدا کی شفقت ہے کہ اب تک ہم فنا نہیں ہوئے, ورنہ وہ ہمیں 1 سیکنڈ میں سیدھا کرنا جانتا ہے. اگر انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے ٹیڑھی کر کے نکال لو, تو خدا کو بھی سارے طریقے آتے ہیں. طریقے سارے خدا کو بھی. آپ کی جرت نہیں ہے کہ آپ چرپائی سے نیچے قدم بھی رکھ لو. آپ کو کاموں کی بڑی پڑی ہے. آپ اگر خدا ٹیڑھی انگلی کرے تو آپ 1 سیکنڈ کے لیے قدم اٹھا نہیں سکتے. کہاں کام, کہاں پیسہ, کہاں دولت, کہاں کی فکریں.
کہاں جائے گی بیوی اور کہاں جائیں گے بچے, کہاں پر بچوں کی شادیاں ہوگی. ہم بچوں, میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے, ہم نے کوئی بچوں کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ ہم نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں. یہ ہمارا ٹھیکہ نہیں ہے, یہ ٹھیکہ خدا کا ہے, کیونکہ خدا نے اس زمین پر ان کو بھیجا ہے تو خدا ہی ان کی حفاظت کرے گا, خدا ہی ان کے لیے انتظامات کرے گا. یہ غلط فہمی ہم میں پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے کرنا ہے, یہ سب خدا نے کرنا ہے, یہ سارا خدا نے کرنا ہے. کیونکہ جب تک خدا گھر نہیں بناتا, بنانے والے کی محنت عبث ہے. ہم جو مرضی کر کے دیکھ لیں, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیا ہوگا, کیا کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. زیادہ سے زیادہ ہم مال اکٹھا کر سکتے اور ایک ہی دم میں مال کو لے کر اڑ جائے گا. پھر کیا کریں گے؟ یہاں پر مال اکٹھا کر کے رکھے اور کوئی دوسرا ایک اٹھا کے لے جائے گا, آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی پیسہ کدھر گیا, کیا بنا, کیا ہوگا. ابھی تو یہ شاید ہم بھول جاتے ہیں. جب زلزلہ آیا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مری کے اندر, اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مظفر آباد کے اندر. شاید ایک بھی گھر ایسا نہیں تھا جو اپنے قدموں پہ کھڑا ہوا تھا. سارے کے سارے گھر نیچے گرے ہوئے تھے. ایک بھی گھر ایسا نہیں تھا. ایک پورا مہینہ لگا وہاں پر ایک پہلا بلب جلانے کے لیے. پورے ایک مہینے بعد ہم نے مظفر آباد کے اندر دیکھا کہ ایک بلب وہاں پر روشن ہوا. خدا ایسا کر سکتا ہے. سب کچھ ملیا میٹ ہو. بینکوں میں جہاں پر سونا چاندی سب کچھ رکھا ہوا تھا, بینک سارے کے سارے زمین بوس ہو گئے. کہاں پر پیسہ گیا, کہاں پر سب کچھ گیا. تو یہ ایک نمونہ, ایک ٹرائل ہے. خدا کچھ بھی کبھی بھی کر سکتا ہے, لیکن محفوظ وہی رہتا ہے جو خدا میں رہتا ہے. آمین. ہمارے گھر, ہماری جانیں, ہماری روحیں محفوظ اس میں ہو تو زیادہ اچھا ہے. ابھی وقت ہے, آج وقت ہے, ہم ان باتوں پر پھر سے فکر مندی کر سکتے ہیں. سب کچھ جو کچھ بھی ہے یہ نمبر 1 پر خدا کی طرف سے ہے. نمبر 2 پر یہ جو سب کچھ ہے خدا ہی محفوظ رکھے تو یہ رہ سکتا ہے. آمین. خدا ہی محفوظ رکھے تو یہ رہ سکتا ہے. ہمیں بھی اگر خدا محفوظ رکھے گا تو ہم رہ سکتے ہیں, ورنہ ہم فنا ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے ایک قدم ہے جو ہم اٹھا سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بدنوں سے ناراستی کو دور کر سکیں. اور جب ہم ناراستی کو دور کریں گے ہم محفوظ رہ سکیں گے. آمین. ایک اور حوالہ پڑھیے. حوالے تو بہت زیادہ ہیں لیکن اس دفعہ سارے پڑھے نہیں جائیں گے, لیکن ایک خاص حوالہ ہے. خروج کی کتاب سے حوالہ ایک نکالیے, 12واں باب اور اس کی 13ویں آیت. یہاں پر ایک نمونے کے طور پر یہ ریفرنس, اس کو پڑھ کر ہم اینڈ کریں گے. اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ جن گھروں میں تم ہو, جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے ان پر وہ خون تمہاری طرف سے ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا. اور میں اس خون کو دیکھ کر میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا. اب یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ آپ کو چھٹی مہر پر کتنے پیغام آپ نے سنے؟ 8واں پیغام ہے. سمجھیے یہ کیا ہے. اس پیغام کے سننے کے بعد, 8ویں پیغام کے بعد اس آیت کو آپ کس نگاہ سے دیکھیں گے؟ یہ چھٹی مہر ہے جس پر میں آج بات کر رہا ہوں. یہ چھٹی مہر کا آخری حصہ ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا جا رہا تھا تو یہ آخری لاسٹ ٹائم تھا. جن پر مہر ہوگی وہ بچ جائیں گے. جن پر مہر ہوگی, اور بچنے کے لیے خدا نے ایک نشان دیا ہے. بچنے کے لیے ایک نشان دیا ہے کہ جس گھر پر لہو لگا ہوا ہوگا وہ گھر, اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ بچ جائیں گے. آمین. نشان ایک اور بھی ہے, مجھے ابھی یاد آ رہا ہے. راہب کسبی کے اس کھڑکی کے اوپر ایک نشان لگا ہوا تھا. کیا تھا جی؟ لال ڈوری. اور ان لوگوں نے کیا کہا کہ اگر اس جگہ پر لال ڈوری بندھی ہوئی ہوگی تو اس گھر کے اندر جتنے بھی لوگ ہوں گے, جتنے اس گھر کے وہ ایماندار ہیں,
وہ بدکار ہیں، وہ جو بھی ہیں، نشان کو دیکھا جائے گا. نشان کے پیچھے اگر کوئی بدکار ہے، بدکار بھی معاف ہو جائے گا. نشان کے اندر کوئی بدکار ہے تو مصر کے اندر کیا تھا؟ دروازے کے باہر خون لگا دو، اندر سور باندھو، اندر گدھے باندھو، اندر بندر باندھو، اندر انسان باندھو، جو بھی اندر ہوگا وہ محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ خدا کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ باہر نشان لگا ہونا چاہیے. آمین. اگر ہم میں کسی بھی طرح کی اسپرٹ موجود ہے، ہماری انسانیت حیوان کی طرح ہے، ہم کسی بھی طرح کے ہیں، اگر روح القدس کو حاصل کر لیا ہے، اگر روح القدس مہر ہمارے اوپر آج لگ چکی ہے، ہم محفوظ ہو جائیں گے. ہم محفوظ ہو جائیں گے. اس بات کے لیے کتنی فکر مندی ہے. ہماری حالت جیسی بھی کیوں نہ ہو، خدا معاف کر سکتا ہے. ہماری حالت آخری زمانے کے نشانات کے بارے میں اس پیغام کے اندر میں نے بتایا ہوا سیمینار میں. کشتی کے اندر کتنے لوگ آئے ٹوٹل؟ تو کشتی بھری کن کے ساتھ تھی؟ جانوروں کے ساتھ بھری ہوئی تھی. خدا جانوروں کی بھی فکر کرتا ہے. تو آج خدا انسانوں کی بھی فکر کرتا ہے، جانوروں کی بھی کرتا ہے. آپ کو دیکھنے میں تو وہ وائی والے جانور نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت تھوڑی اس سے ادھر بھی ہے. یہ جانور آج ہمارے درمیان میں چرچوں میں بھی آتے ہیں. خدا ان کی بھی فکر کرتا ہے کہ اگر آپ روح القدس حاصل کر لیں، مثال کے طور پر اس چرچ کے باہر گیٹ کے اوپر اگر نشان لگا ہو، ایک لہو لگا دیا جائے اور فرشتہ آئے گا تو باہر سے دیکھے گا اندر کتنے ہیں، کس قسم کے ہیں، ان کی گنتی نہیں ہونے والی ہے. ہمارے اندر کیا ہے، ہمارا دل کیسا ہے، ہماری سوچ کیسی ہے، ہماری آنکھیں کیسی ہیں، ہمارے کان کیسے ہیں، ہمارا کردار کیسا ہے، یہ سب کچھ اندر چھپ جائے گا جب ہم روح القدس پا لیں گے. جب روح القدس پا لیے تو ساری چیزیں کور ہو جائیں گی. خدا باہر سے نشان کو دیکھے گا. اور یہاں پر بھی 7ویں باب میں یہی بتایا گیا ہے کہ جس پر مہر ہے اس کو ضرر نہیں پہنچانا ہے. جس گھر پر نشان ہوگا اس کو محفوظ رکھنا ہے، اس کا پہلوٹا نہیں مرے گا. تو یہ پیچھے بھی دکھایا گیا ہے، یہ اگلے وقت میں بھی دکھایا گیا ہے. ہم نے سب کچھ دیکھ کر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. آمین. اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی فکر کرنی ہے، اپنے خاندانوں کی فکر کرنی ہے، اپنے معاشرے کی فکر کرنی ہے، جس جگہ پر آپ رہتے ان کی فکر کرنی ہے. بے شک لوگ ہماری سنیں یا نہ سنیں، لیکن ہم نے اپنی طرف سے ان کی فکر کرنی ہے. آمین. اور پھر شریر کے بارے میں لکھا ہے شریر کو بتا دینا ہے. اگر وہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو ہم نگہبان ہیں. ہم نے نگہبان ہوتے ہوئے آواز لوگوں کو دے دینی ہے دشمن آ رہا ہے. اپنے آپ کو اگر کوئی محفوظ کرے گا وہ بچ جائے گا، نہیں بچے گا مارا جائے گا. کم از کم نگہبان ہوتے ہوئے یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے بتایا نہیں. آمین. تو میں نے بتا دیا. آج دوسرا پیغام بھی اسی فکر مندی کے ساتھ ہم بند کریں گے کہ میں نے روح القدس پا لی ہے، میری حالت کیا تھی، کیا میں محفوظ ہو چکا ہوں، کیا میں خدا کے ہاتھوں میں آ چکا ہوں یا خدا کے پروں کے نیچے آ چکا ہوں، کلام میں محفوظ ہو چکا ہوں. اگر محفوظ ہو گئے ہیں بچ جائیں گے، اگر محفوظ نہیں ہوئے مار دیے جائیں گے. کیونکہ خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا ہے. جو آج اس کی مانے گا خدا اس کی مانے گا، خدا اس کو محفوظ رکھے گا. آمین. خدا اس کلام کے وسیلے مجھے اور آپ کو بڑی برکت بخشے. آئیے اپنی آنکھوں سے بند کریں گے، سر کو جھکائیں گے.